Okay, so I'll change the setting from it. Okay, so for now I have muted everyone and I have not given the permission to unmute. Chat ke through we can communicate, and probably in the end, by the end of the session, we will be able to understand that the audience is all genuine, सारे Genesis key parents हैं. So we'll give you the permission to unmute yourself also. So now, since I'm not able to hear you out, so your body language and nodding is the only sign I can trust. So it would be glad that it would be very मजा आएगा अगर आप लोग वीडियो ऑन करके ही सेशन अटेंड करेंगे. Also, since for the sake of taking in attendance, अगर आप लोग अपने बच्चे के नाम से एंटर करेंगे, there are few parents who have not entered with their kids name, तो वो अगर आप कर लेंगे तो हमारे लिए ट्रैकिंग आसान हो जाएगी कि who all have attended the today's session. So I think on this note, let's start. Very, very good evening to all of you. It's good to see you guys have turned up for a session on Saturday evening. We were expecting a bit more attendance, but I think as the session will progress, we'll have more people joining in. So since it's let's फटाफट से start करते हैं without wasting any further time. We'll talk about two things today. One, present, what is going to be done in next 20-25 odd days. That's one. अच्छा, I promised you Hindi. So एक होगा present वाला part, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि हम आज मतलब अगले 20-25-30 दिन हम आपसे क्या सपोर्ट चाहते हैं और हम आपको क्या सपोर्ट दे पाएंगे. And second part would be the future. Both are going to work hand in hand. दोनों को साथ लेके चलेंगे. But the पहला सेशन का जो पहला part होगा, which is strictly on focusing upon the board examinations. So I think so I'll be very honest with you. मुझे ऐसा लगता है कि for this session the parents should only be listening to me. The students, हमारे प्यारे बच्चे, should not be listening to us. ठीक है. Now if they are अगर आसपास बैठ के सुन रहे हैं, छुप के सुन रहे हैं, तो उनको बोलो किसी और रूम में दौड़ जाएं. ठीक है. Now so pre-boards generally एक बार if I talk about an ICSE schools, इसमें एक बार होता है. CBSE में multiple times होते रहते हैं, चली जा रहे हैं, कईयों के अभी progress में हैं. So my only request to all of you is that कि though pre-boards are very important, okay, but I'm telling you from my own experience of dealing with kids from so many years, pre-boards के marks हम बच्चों को बोलते हैं बहुत important है, but pre-boards के marks कहीं भी board के marks के closest भी नहीं आते हैं. ठीक है. एंड आई एम नॉट, तभी मैंने आपको बोला कि हम बच्चों को इस सेशन में नहीं रखेंगे, बिकॉज फिर वो सर पे नाचेंगे हमारे कि इवन इफ आई हैव नॉट परफॉर्म वेल, साहिल सर ने बोल दिया है दैट इट्स ओके. नो, you see, I'll be very honest that if I go back and reflect last 5-year toppers, and that also includes 3 times we managed to produce a tri-city topper in ICSE and twice in CBSE also. उन बच्चों जिनका स्कोर 98% से ऊपर आया बोर्ड एग्जाम में, अगर मैं उनके भी स्कोर्स मैं आज चेक कर रहा था अपने रिकॉर्ड्स को, बिकॉज आई हैड टू कंडक्ट दिस सेशन. सो मैं जब उनके रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था कि उनका कितना स्कोर आया था प्री बोर्ड्स में, 84, 85, 88, 87%, 82% also, and eventually they scored even more than 98% in the final examinations, which is board examinations. तो फिर मैं थोड़ा और नीचे गया, फिर मैं उस लेवल पे पहुंच गया कि जो बच्चों का स्कोर अराउंड 90-95% के बीच में आया था in their final board examinations, उनका प्री बोर्ड में स्कोर was somewhere between 75, 78, 80. So my only request to you is, out of lot of requests which I'll be making to you today, my first request to all of you is that panic नहीं करेंगे. पैनिक बनता है करना. अगर मेरे बच्चे के 60% नंबर आए हैं, 50% नंबर आए हैं, अगर 80 में से आज भी 40s में है, 50s में से है, तो एज अ पेरेंट ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड, आपका पैनिक बटन दबाना बनता है. आपका जिनके भी मार्क्स उतने ट्रैक पे नहीं आ पा रहे हैं, अगर 70s में है, 60s में है, बट आई अगेन रिपीट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू वुड सी अ किड who is getting 60, 65 presently will eventually end up above 80. Trust me on this. And आप उस तरीके से आप लेवल अप कर सकते हो. ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं. हम we would take drastic measures. In fact, हमने next 20 days के लिए बहुत strong plan किया है. ठीक है. But what is your role would be
बिकॉज अब आपकी सपोर्ट हमें थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होगी, frankly speaking, is that the atmosphere in the home, the atmosphere at your places, जो आपके घर का vibe है, माहौल है, we would want it that to be very very positive, but still very very accountable for a child. मतलब दे पैनिक, अगर आप इंटरनली डर भी रहे हो, आई डोंट नो, मतलब बिकॉज वी हैव नो, मतलब पर्सनली बट इनसे मिले नहीं, बट अगर आप इंटरनली थोड़े डरे हुए हो मार्क्स को लेके, बोर्ड्स को लेके, परफॉर्मेंस उतनी नहीं आ रही है जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस टाइम तक, बिकॉज एज अ पेरेंट, एज अ मेंटर ऑल्सो, वी ऑल्सो हैव आवर बेंचमार्क्स की इस टाइम तक बच्चा यहाँ होना चाहिए, इस टाइम तक यहाँ होना चाहिए, इस टाइम तक यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो लाइन में, अगर जैसे मान लो हमारे एक बच्चे को लेके ये एक्सपेक्टेशन है, वो अगर अभी यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, तो वो हम भी डरते हैं, बिकॉज इवेंचुअली वी ऑल्सो हैव टू डिलीवर टॉप रिजल्ट्स। बट अगर वो पैनिक हम कर रहे हैं, वो हमने पैनिक शो नहीं होने देना, बिकॉज अब क्या हो रहा है कि जेन्युइनली स्पीकिंग, फॉर 90% of the students at this point of time, 90% of the students, there's still 10% who are very very still in the enjoyment fun phase and still reckless, but 90% बच्चा इस स्टेज पे जाके सिंसियर हो चुका है, सीरियस हो चुका है। सो अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट कि अब इस स्टेज पे हम उनको उन चीजों के लिए काउंटर नहीं करेंगे विच प्रॉब्ली हैज गॉन इन द पास्ट। सो अगर उसने 5 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने उतनी मेहनत नहीं की है, उसने मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, अभी भी करते हैं ऑब्वियसली बच्चे, है ना, तो हम उसको पास्ट को डिग आउट करके पास्ट के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आई थिंक लेट्स फोकस अपॉन नेक्स्ट 25 days और 20 odd days इन द बोर्ड्स, एंड देन नेक्स्ट 20-25 days जितने दिन बोर्ड एग्जाम चलेंगे। एंड I'll be very honest, trust me, I've seen, I'll not say miracles, 20%, 15% का जंप बहुत इजीली बोर्ड्स में आता है, ठीक है। बट सिस्टम ऐसा बनना चाहिए दैट कि अगर बच्चा, मतलब कुछ चीजें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इज दैट द वाइब ऑफ द होम शुड बी वेरी पॉजिटिव, इवन इफ यू आर अ बिट स्केयर्ड। वो क्योंकि बच्चा भी कहीं ना कहीं वो आपको शायद शो नहीं करेगा, बिकॉज अगर आपको शो करेगा तो आप, वो बहुत सारा माहौल खराब हो जाएगा, बट वो बच्चा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरा होगा। तो अभी हमने उसको बैड प्रेशर नहीं देना, गुड प्रेशर देना है। सो द डिफरेंस इज वेरी सिंपल। So a bad pressure makes you suffocate. Good pressure inspires you to work well, inspires you to work hard. This is number one. मतलब अगर हम वो बैड प्रेशर हम कैसे दे देते हैं कि प्री बोर्ड्स के लिए अगर हम बहुत ज्यादा टॉन्ट्स मारेंगे, ठीक है, हम मोबाइल फोन के लिए ओवर यूजेज के लिए बहुत ज्यादा टॉन्ट मारेंगे। सो यू सी, टॉन्ट हम भी मार रहे हैं, टॉन्ट आप भी मार रहे हो, फॉर एग्जांपल, उससे अगर चीजें इंप्रूव नहीं हो रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इट मींस दैट द ओल्ड सॉल्यूशंस आर नॉट वर्किंग। So we got to implement some new solutions. I think the one of the important solution is that tomorrow, मैंने आज बहुत deliberately Saturday choose किया इसको, इस सेशन को, it was planned कि मैं आज Saturday को ऑफलाइन से ऑनलाइन सेशन करूंगा। अगर नीड भी arise तो I will be meeting few of the parents tomorrow. I'll give you 2 time slots tomorrow where you can come and personally meet me also, ठीक है। And also deliberately Saturday was chosen कि आप कल बच्चे के साथ कुछ time, or in fact today evening also, you can spend some time to brainstorm and understand what is going in their mind. तो and when I say brainstorm and to understand what is going in their mind is, इसका ये मतलब है कि आप उससे कोशिश करो ये निकलवाने की कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कहाँ गॉज करता है, मतलब वो इस टाइम पे फॉर, मतलब वो क्या, उसको क्या लग रहा है। आई शो यू चार्ट आल्सो विच मैंने बच्चों के साथ एक सेशन भी किया था 26 जनवरी को। आई चोज द डेट, उसमें काफी बच्चे आए भी थे, उनको मैंने एक हार्डकोर प्रिंट आउट भी दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखो, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि उसमें मैंने एक इंडेक्स दिखाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल बच्चे के प्रेजेंट सब्जेक्ट में वो अपने आप को किसी भी सब्जेक्ट में प्रेजेंट डे पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन नाउ, बिकॉज नाउ I'll give you practical solutions कि रॉकेट साइंस की तरह, रॉकेट की तरह मार्क्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं इन फाइनल 20 days। तो सबसे इंपॉर्टेंट इज दैट वी नीड टू प्लान एटलीस्ट 5 days इन एडवांस कि हमने 5 दिन बच्चे ने क्या पढ़ना है। एंड वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जैसे स्कूल्स में मोस्ट ऑफ बच्चा सिर्फ पेपर देने के लिए जा रहा है, और कई स्कूल्स में तो सब कुछ हो चुका है, बच्चा ऑलमोस्ट फ्री है। उस सिचुएशन में सुबह बच्चा उठता है, कपबोर्ड के सामने अपनी बुक्स के सामने खड़ा हो जाता है, वो 5, 10, 15, 20 मिनट तो यही सोचता रह जाता है कि मुझे आज पढ़ना क्या है।
फिर वो कोई बुक एक रैंडमली बुक निकाल लेता है, फिर 15 मिनट उस बुक को पढ़ता है, फिर वो उसको उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बना, वो स्विच ऑन करता है दूसरे सब्जेक्ट को। ऐसा करते करते एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी आती नहीं है। वो इसलिए प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है बिकॉज देयर इज नो प्लानिंग। वो इसलिए प्लानिंग नहीं है बिकॉज देयर इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस फॉर दैट मैटर, वो इसलिए नहीं है बिकॉज देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। एंड व्हेन आई से इंट्रोस्पेक्शन इज दैट बच्चा सिर्फ रोज का रोज रूटीन में बह रहा है। सुबह स्कूल का टॉर्चर अगर है, शाम को हमारा टॉर्चर वो भी है। स्कूल का टॉर्चर चलो बंद हो भी जाएगा, हमारा तो अभी चलेगा जब तक बच्चा अगले दिन तक भी एग्जाम है, तब तक हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, डाउट्स के लिए भी बुलाते रहेंगे। सो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स कम आए, अगर आप मतलब कई बैचेस में मैं इन्वॉल्व भी हूँ, मार्क्स कम आए प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम इज मार्क्स जो कटे वो कहाँ कटे, जब तक हमें वो नहीं पता होगा हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। और उसके लिए वी नीड टू स्पेंड टाइम, एंड दिस इज वेयर आई प्रॉब्ली नीड योर सपोर्ट। कि टेक्निकल पार्ट नहीं है कि आपने उसको प्रॉब्ली हिंदी पढ़ानी है या एसएसटी पढ़ानी है या मैथ्स पढ़ाना है या फिजिक्स पढ़ानी है। द पार्ट इज वेरी सिंपल दैट वी नीड यू टू प्रॉब्ली सिट विद देम, हेल्प देम इंट्रोस्पेक्ट। I repeat, help them introspect. I'll show you something on आपको just have patience for 30 seconds. Let me share my screen with you. मैंने ये उनके साथ शेयर किया था बच्चों के साथ। उनके पास ये सबके पास जिन्होंने भी वो मेरा थर्सडे वाला सेशन लगाया था 26 जनवरी वाला, they will definitely have this chart. अगर नहीं है तो I'll WhatsApp you in the groups. अभी ये लास्ट मिनट देखो खोल के। अब आप लोग क्या मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? Can you see a chart with the name my preparation strategy? A nod will do. Awesome. So I think I've got the nod. So if you see this chart, let me just macro it for you. अगर मैं इस चार्ट को देखूं, this is something which I gave it to them, all of them, जो जिन्होंने मेरा the attendance session on Republic Day. Now this is a very simple chart which will take 2 hours, 2.5 hours to get finished. So what does it say? I'll straight away move it quickly to you. Physics for example, presently बच्चे को 5 में से अपने आप को क्या रेटिंग देता है? ठीक है, अगर 2 नंबर की तैयारी है, 3 नंबर की है, 3.5 की है, 4 की है, 1 की है, बेस्ट केस सिनेरियो 5 की भी हो सकती है। तो यहाँ पे वो अपने फर्स्ट कॉलम में अपने आप को मार्क्स दे देगा। कैन यू सी द फर्स्ट कॉलम जहाँ पे मेरा अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ? ऑसम। सो आप चैट पे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। माय टीम इज आल्सो इन्वॉल्व, सो अगर कुछ होगा तो दे विल अर्जेंटली पिंग मी आल्सो। सो द सेकंड कॉलम इज माय गैप एरियाज। तो अगर बच्चे ने अपने आप को मान लो फिजिक्स में 5 में से 3 दिए, तो ऑब्वियसली 2 नंबर कहीं उसने काटे हैं। वो कहाँ कटे हैं, कौन से चैप्टर उसको लग रहे हैं उसके वीक हैं, कहाँ लग रहा है उसको, कौन सी चीज कॉन्फिडेंट नहीं है। इज इट न्यूमेरिकल विच इज बॉदरिंग हिम फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर? इज इट सम डेरिवेशंस विच इज बॉदरिंग हिम? इज इट सम थ्योरेटिकल चैप्टर विच इज बॉदरिंग हिम? सो दिस वुड बी माय गैप एरिया जो बच्चा अपने हाथ से लिखे, ठीक है। ये आई रिपीट, द शीट हैज बीन प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। अगर नहीं मिली है तो किसी रीजन से बच्चा सेशन नहीं अटेंड कर पाया था, तो आई विल पुट इन द ग्रुप, प्लीज टेक आउट द प्रिंट आउट। एंड आप इसके साथ, ये मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि आप इसमें उनके साथ बैठ के काम कर सकते हैं। थर्ड इज ना, जो गैप एरियाज लिखे अब उन पे काम कैसे करना है। तो द थर्ड कॉलम विल हैव, फोर्थ कॉलम सॉरी, विल हैव व्हाट आई मस्ट डू टू इंप्रूव माय लेवल। सो अगर आज प्रेजेंट रेटिंग 3 है और 2 है, तो उसको 4.5 पे अगर हमने बोर्ड्स तक लेके जाना है, सो उसमें वो स्टेप्स आएंगे, वो करे क्या। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, एक बच्चा कहता है कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल स्टफ लगते हैं, तो ही शुड राइट वेरी क्लियरली हियर, प्रैक्टिस मोर इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स फ्रॉम प्रॉब्ली। अब अगर उसको बुक के क्वेश्चंस हो जाते हैं, बाहर के क्वेश्चन नहीं होते, देन द आंसर शुड बी प्रैक्टिस मोर फिजिक्स क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through previous year sample papers or previous year board papers. Similarly is for chemistry, similarly is for bio. If you see the chart for mathematics, even if I've done it for their SSTs also, and this is for all the subjects computer science के अलावा जो उनके done हैं. And then the last column is very very crucial. How many hours to be invested to achieve my target? So for example, physics में उसने 3 चैप्टर, 2 चैप्टर, 1.5 चैप्टर जितना भी लिख दिया, अब उसको कवर करने के लिए देयर वुड बी सम टाइम व्हिच नीड्स टू बी इन्वेस्टेड फ्रॉम हिज एंड, हिज और हर एंड,
वो कितना इन्वेस्ट करना है टाइम, दैट वुड कम इन द लास्ट कॉलम, एंड दैट शुड बी नॉट इन टर्म्स ऑफ डेज, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ आवर्स. सो ये तभी कर पाएगा बच्चा अगर वो सॉलिड इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, और सॉलिड इंट्रोस्पेक्शन वो तभी कर पाएगा अगर जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उनको, और अगर आप भी वो बोलेंगे, तो वी ऑल विल बी ऑन द सेम पेज. इफ वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, तो कहीं ना कहीं अगर दोनों तरफ सेम फीड जा रहा है तो वो लेवल इंप्रूव हो जाएगा, डेफिनेटली होगा. सो वंस दिस इज डन फॉर एवरी सब्जेक्ट, this chart is done, it will take at least 2 hours, trust me on this, अगर बच्चा ढंग से बना रहा है. अगर आपके पास ये चार्ट बच्चा 10 मिनट 15 मिनट में बना के ला रहा है हमारा बच्चा, तो डेफिनेटली उसने ढंग से नहीं बनाया, वो कैजुअल एफर्ट है. at least 2 hours, 2.5 hours, because it requires a lot of brainstorming, but this is worth, because this will sort them for next 20 odd days. Now once this is done, then comes the game plan. So when I say the game plan, means the action plan. So when I say the action plan, okay, अब हमने चार्ट बना लिया, अब क्या, अब अगले 20 दिन को हमने डे 1 डे 2 से लेके, इफ यू सी डे 20 तक हमने वी हैव गिवन देम द कॉलम्स. यू कैन यूज मोर देन वन शीट इफ द कॉलम्स आर, अगर बच्चे की प्रिपरेशन अभी मेस्ड है. सो फॉर एग्जांपल, अब नाउ ही और शी नोज इट कि मुझे, अब आप ध्यान से देखेंगे कि वापस 2 शीट्स इस शीट पे जब आएंगे, तो फॉर एग्जांपल बच्चे ने फिजिक्स में लिखा 3 आवर्स, केमिस्ट्री में लिखा 2 घंटे, बायो में लिखा 4 घंटे, मैथ्स में मान लिखा 3 घंटे, हिस्ट्री में लिखा 10 घंटे, ज्योग्राफी में 4 घंटे, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर दे हैव रिटन. अब यहाँ पे जब आपके पास एक ब्रीफ सिनेरियो होगा, आपके पास भी और बच्चे के पास भी, दैट मुझे अपने इस सब्जेक्ट को जो आज इस लेवल पे है, अगले 20 दिन में इस लेवल तक लेके जाने के लिए, या इवन टॉप लेवल पे लेके जाने के लिए मुझे एक्स नंबर ऑफ आवर्स देने हैं, और मुझे पता है वो मुझे कहाँ देने हैं. आप सब मेरे साथ है ना, मैं अकेला तो नहीं बोल रहा. ऑसम, थैंक यू. सो वो मुझे कहाँ देने हैं, बिकॉज कहाँ देना इज मोर इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब वो सुबह बच्चा उठता है या रात को सो रहा है, ही और शी शुड बी वेरी क्लियर कि कल का टास्क क्या है, और वो टास्क यहां लिखा जाएगा. मैंने आपको जैसे बोला, इस शीट को ओपन करने से पहले 5 डे का प्लान बनाएंगे. आइडली 5 डे होता है, 3 डे से भी काम शुरू कर सकते हैं हम. सो इफ वी डू दिस एक्सरसाइज टुडे, सो डे 1 इज संडे विच इज टुमारो. अगर कल आई थिंक जेनेसिस फुल फ्लेज सबकी क्लासेस है, मोस्ट ऑफ द सबके टेस्ट हैं, तो इफ यू डू इट टुमारो विद देम, देन डे 1 इज मंडे. ठीक है. सो अब रफली 20 दिन ही बचेंगे. सो अगर हम इस हिसाब से अब डे 1 में क्या लिखा जाएगा, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा. डे 1 में जो उसने पढ़ना है पूरे दिन में, जो उसका टारगेट है, मिशन डे 1 जिसको कहते हैं, कि मुझे मंडे, फॉर एग्जांपल डे 1 इज मंडे, तो बच्चा कल रात को लिखने सोने से पहले डे 1 डे 2 डे 3 एटलीस्ट 3 डेज का प्लान करके सोए. सुबह उठ के प्लान होगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. एक दिन पहले 3-4 दिन का प्लान होगा कि डे 1 के स्कोप में, आई रिपीट, मुझे क्या क्या पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, वो कहां से पता लगेगा, वो अब ये दोनों, ये ऊपर वाले चार्ट से पता लगेगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, मुझे केमिस्ट्री में एसिड बेसिस सॉल्व करना है, मुझे बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी करनी है, मुझे मैथ्स में सिमिलर ट्राइंगल्स करना है. ये मेरा डे 1 का टारगेट है. डे 2 मुझे हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी से पढ़ने हैं या टेक्स्ट बुक से पढ़ने हैं, एंड सो ऑन. दिस इज हाउ, once this is done, 2 प्रिंटआउट्स, ये दोनों प्रिंटआउट्स बच्चे के स्क्रीन जहां पे वो पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं फॉर अ चेंज, वहां लग जाएंगे. एंड दिस वुड बी व्हाट डू वी से, अ रोड मैप फॉर नेक्स्ट 20 odd days, इवन मोर देन दैट, क्योंकि ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम अच्छी खासी छुट्टियां बीच में मिलती हैं, 2-3 दिन मिलती हैं. सीबीएसई में तो और ज्यादा मिलती हैं. They'll have a roadmap ki, okay, what needs to be done on what day, what are the weak areas, what has been the strong areas. This is called as converting a hard work into a super strong smart work. So मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है. So आप लोगों को समझ आया है चार्ट. तो मुझे आप लोगों से ये हेल्प चाहिए कि आप बच्चे के साथ बैठ के, ये चार्ट उसके पास, सबके पास पहुंचा हुआ है, ठीक है. आप ये बच्चे के साथ बैठ के उसे चार्ट, उसके साथ बैठ के उसको इनकरेज करो, उसको इनफैक्ट डेडलाइन दो कि यार ये चार्ट ढंग से करके दे दे. अगर आपको लगता है एक टाइम पे, ध्यान समझना, अगर आपको लगता है एक टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ट्रिकी हो जाएगा, तो आप आज रात 2 सब्जेक्ट्स 3 के लिए दे सकते हो, कल 2-3 के लिए और दे सकते हो, मंडे तक क्लोज कर सकते हो पूरा चार्ट. सीबीएसई के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज एसएसटी एक सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट है. आईसीएसई में सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, सब्जेक्ट्स भी 10 हैं. ये मैंने बनाया इसके लिए कि आप दोनों, सीबीएसई और आईसीएसई का दोनों टाइप का बच्चा इसको ऑब्जॉर्व कर सकता है.
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? अगर कोई डाउट है आप इम्प्लीमेंटेशन में आप चैट पे भेज सकते हैं. ऑसम, ठीक है, नो डाउट्स, दिस इज वेरी गुड. ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू द रूटीन्स, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हेल्प मी अबाइड दिस. दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम, जिस टाइम पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें आई कांट हेल्प यू, यू हैव टू हेल्प मी. इनफैक्ट जिस टाइम पे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम होना है, उस टाइम पे मेक श्योर अगर बच्चा अब स्कूल नहीं जा रहा, घर है, आप उसको, वो उसका पीक कंसंट्रेशन का टाइम होना चाहिए. which means this is a very important point and this is a technical point. Okay, this is about helping a child cope up under the time zone. So for example, हम सबका दिमाग, everybody is a different kind of a human being. ठीक है, जैसे आई एम अ नाइट बर्ड, मुझे रात को काम करना 2-3 बजे तक कंफर्टेबल होता हूँ. कुछ बच्चे, कुछ अर्ली राइजर्स हैं, कुछ लेट नाइट, मतलब मेरी तरह चमगादड़ टाइप के लोग हैं. ठीक है, बट बच्चे के पास ये ऑप्शन इस एज में नहीं है, बिकॉज उसको अभी पेपर का टाइम, ही कैन नॉट चूज इट टू बी फ्लेक्सिबल. सो अगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरे बच्चे का एग्जाम सुबह 10 से 12 के स्लॉट में या 10 से 1 के स्लॉट में बोर्ड का पेपर होना है, और मेरा अभी बच्चे का रूटीन चल रहा है कि वो लेट नाइट स्टडी कर रहा है 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, और वो सुबह लेट उठ रहा है, this has to be stopped from now, because brain takes absolutely approximately 20-22 days to get acclimatized with the new routine. So आप imagine करो एक बच्चे की situation जो बेचारा रोज 3-3-4, एंड ये मेरे साथ बहुत बच्चों के साथ हमारे हुआ है, 3-3 4-4 बजे तक, इनफैक्ट 5-5 बजे तक सुबह पढ़ते हैं, 10th के भी. ठीक है, देन दे स्लीप एट अराउंड 4:35 AM बिकॉज स्कूल्स खत्म हो जाते हैं इस टाइम तक, एंड दे गेट अप, दे वोक अप एट अराउंड 12-1 आफ्टरनून. आउटपुट निकली पढ़ाई की. बट आप इमेजिन करो अगर बच्चा ये रूटीन फॉलो कर रहा है आज, तो जब एग्जाम में बैठा है वो सुबह 9 बजे वाले में, तो उसका माइंड साइकिल ऑफ माइंड चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको एग्जाम, उसका पीक कंसंट्रेशन का टाइम कब लग रहा है, उसका पीक कंसंट्रेशन का टाइम लग रहा है प्रॉब्ली दोपहर को, या अगर वो दोपहर से 12 बजे उठ रहा है, 12:30 उठ रहा है, तो उसका पीक कंसंट्रेशन जनरली बनेगा जब वो 3-2:30-3 बजे जेनेसिस आना शुरू होता है. उस टाइम पे वो पूरा एक्टिव है, बट पेपर तो उस टाइम होना नहीं है, तो उस टाइम पे उसके दिमाग को एक्टिव करने का कोई भी सेंस नहीं. तो इस स्टेज पे अभी तक मैं बच्चों को ये बोलता था कि जब पढ़ना है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तुमने जब पढ़ना है पढ़ लो, बस पढ़ लो. अब एक चीज ऐड होगी, पढ़ना तो है ही है, बट पढ़ने के साथ साथ देयर हैज टू बी अ रूटीन कि कब पढ़ना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आइडल एंड सिंस इट्स अ 10th क्लास, ये 12th भी नहीं, क्योंकि जेई का पेपर तो दोपहर को भी शिफ्ट में भी होता है, नीट भी दोपहर के शिफ्ट में भी होता है, बट ये 10th क्लास के बच्चे हैं तो इनका शिफ्ट तो मॉर्निंग ही है. सबका पेपर आई थिंक 12:31 से पहले पहले खत्म हो जाएगा. तो एंड जितना मुझे पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, बच्चों से मैं बात करता हूँ, वो बताते हैं सबका रूटीन उस टाइम पे लीस्ट कंसंट्रेशन का है, स्पेशली जब बच्चे घर से काम कर रहे हैं. तो ये तो हम, वी विल लूज इट. तो हम जितनी मर्जी तैयारी कर लें, हम जितना मर्जी स्मार्ट वर्क कर लें, हम अगर देर रात तक 3-3 4-4 बजे पढ़ रहे हैं, और हम अगर 9 बजे नहीं उठ पा रहे, आइडल केस में अब क्या होना चाहिए, बच्चे को आइडली शुड स्लीप मैक्सिमम बाय 1, should wake up at around 7-7:30-8 is the last 7 घंटे. And then if the peak concentration exam time is from 9:30 to 12:30 or 10 to 1 or 10:30 to 12:30, whatever is the peak time, this is very important point, क्योंकि मैं आपके घर नहीं आ सकता इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए. उस टाइम पे बच्चा बेड पे नहीं, टेबल चेयर पे बैठ के आइडली प्रॉपर विदाउट मोबाइल पढ़ाई करेगा, एंड मेक श्योर वो इंप्लीमेंट हो रहा है. और अगर आपको लगता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम आवर सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड, अगर आपको लगता है कि आप अपने इन पे इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, आप तीनों में से किसी भी ब्रांच में जो भी आपको नियरेस्ट है, आप बच्चे को उस टाइम पे भेज दो, वी वुड इंश्योर दैट वी वुड गेट इट इम्प्लीमेंटेड. बस आपको हमें पहले एडवांस में इन्फॉर्म करना है, ताकि बच्चा वो थोड़ा सा इधर उधर निकल ना जाए, हम फिर उसको ट्रैक ही करते रह जाते बच्चा कहाँ चला गया. यू गॉट टू टेल अस इन एडवांस कि मेरा बच्चा सर ये 2 दिन सुबह आके, मतलब आप एडमिन वाली टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आएगा, सो दैट वी टेक द फोन at the reception, we give them a classroom, proper classroom, we tell them you are not supposed to come out of this classroom for 3 hours, and then it's a good time, then it becomes absolutely magical for all of us.
Are you guys with me? This is damn important. मतलब this is something which will absolutely rocket their, because जब वो एग्जाम में बैठे होंगे, अगर उनका दिमाग चलेगा ही नहीं, तो no matter what is the preparation, बैंड बज जाएगा. And this year it happened with one of our brilliant student for JEE. उसका बेचारे का JEE1 इस बार इसलिए अटक गया बिकॉज वो रात का प्राणी था. इसको बोला कि बेटा तू रूटीन बना, उसने रूटीन नहीं बनाया, वो पूरी रात जाग के पेपर देने चला गया, पेपर में एब्सोल्युटली ब्लैंक आउट हो गया. And so this is not acceptable. This is not advisable for that matter. So routine is very important. Okay. Last, where I very strongly feel that we all should, I repeat, we all should encourage kids, that I very strongly believe that. I don't implement that. Okay, but I very strongly believe that the stress, this is very important, the stress of the body releases through sweat. The 45-minute physical activity every day, I don't implement it, but मुझे पता है ये करना चाहिए. But stress will help them release, मतलब sweat. तो उनको 45 मिनट encourage करेंगे. अगर देखो स्कूल खत्म हो चुके हैं मान लो, तो थोड़ा सा sluggish हो जाएगा माहौल. कोई routine थोड़ा सा there is a lack of routine now. Now, if they are able to take out 45 minutes every day, I know this is going to be the toughest part to get implemented, है ना. बट अगर आप किसी तरीके से उनको encourage कर सकते हो, मैं भी करूंगा, कर भी रहा हूँ इनफैक्ट, कि वो 45 minutes per day रोज, इनफैक्ट this should be a part of their life, but at least till exam days वो 45 minutes अपने आप को ब्रेक फ्री करें without mobile. Probably आप उनको accompany करो for a walk or a jog or cycling with the headphones on. It's okay if their headphones are on, but वो Insta YouTube shorts नहीं चलने इस टाइम पे, and they're completely cut down from their पढ़ाई also and social media. Efficiency बहुत strongly बढ़ेगी. Because I very strongly believe that कि इस stage पे बच्चा 90%, just I said in the beginning also, 90% बच्चा अगले 20 दिन को एटलीस्ट 10 घंटे 8 घंटे की सेल्फ स्टडी रोज करनी है. अगर स्कूल नहीं जा रहा तो 8 घंटे आराम से निकालने हैं, कुछ भी नहीं 8 घंटे. अगर हम 2.5-3 घंटे रोज बुला रहे हैं, 8 घंटे आराम से निकलने चाहिए 8 घंटे. और वो 8 घंटे में से 7-8 घंटे सोना है, 2-3 घंटे जेनेसिस को रोज देने हैं. And then comes your 45 minutes of physical activity. Very important. And मतलब एक चीज हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, and we all, I'll say, have not been able to live up to that, is उनकी जो मोबाइल यूजेज को हम कुछ हद तक, कईयों की लिमिट हो गई है काफी हद तक. कुछ मुझे बच्चे दिखाते हैं क्लासेस में, नाउ दे कैरिंग द स्मॉल, वेरी वेरी क्यूट स्मॉल फोन्स which are not smartphones, which is impeccable, and I'm very grateful those kind of parents जो इसको implement करा चुके हैं. But at least for next few days, probably 45-50 days, जब तक बोर्ड एग्जाम है, we must request them, inspire them, guide them. डंडा उठा लेना चाहिए to ensure that whenever they are still doing a self study, which should not be less than 8 hours every day from now onwards, वो 8 घंटे उनके पास मोबाइल का एक्सेस, टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होना चाहिए. Let's take them back to the old school methods. 10-year paper, NCERT and or their textbook with a good register, good quality rough register and classroom notes. सिर्फ इतना चाहिए अच्छा रिजल्ट फोड़ने के लिए. गूगल नहीं चाहिए, यूट्यूब नहीं चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में प्रॉब्लम नहीं है. यूट्यूब में बहुत अच्छा कंटेंट भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो शुरू यूट्यूब कंटेंट से करते हैं, एंड अप इंस्टाग्राम रील पे करते हैं. प्रॉब्लम ये है. प्रॉब्लम इज नॉट with good teachers at YouTube. Problem is, since they are very, our kids are very bhola at this age, they don't understand कि जब, because the apps have been designed in a way that they get hooked up. I think we all know. In fact, we also get hooked up. एक जगह से शुरू करते हैं, हम कहाँ पे end करते हैं, and in the process we lose around 45, 50, 55, 60 minutes. और यही हमारे भोले बच्चे 2 घंटे 2.5 घंटे बाद realize करते हैं कि we have invested such kind of time. Not acceptable, risky. So we need to be collectively handle this. Okay. And I'll take a 1-minute break. After 1 minute, you have to rejoin the session. Okay. I will discuss the most important part of the other part of the discussion, which is about the state quota system and couple of other things which are going to be very important. I'll take a 1-minute break. आपको भी ब्रेक लेने ले लो. We'll resume. This is 7:35 in my watch. We'll rejoin at 7:37 using the same details. Perfect. See you super soon.
Still recorded. Okay, so let's move to the important part now. Talking about the different streams in class +1 +2, I think मैं एक line में एक चीज बोलना चाहूंगा that all the streams have immense opportunities. It's not about कि stream कौन सी वो है. It's just that what makes this real difference is that कि बच्चे का instead of stream से पहले हमारा अपने आप से और बच्चे से एक ही सवाल होना चाहिए कि that आपका कौन से subjects में interest है. And because I'll be very fairly honest with all of you कि जो चीज हम लोग मतलब 90% again I'm saying हम लोग जो सब्जेक्ट्स 10th के बाद चूज करते हैं है ना, और जो हम काम करते हैं 20 साल बाद कर रहे होते हैं, इनफैक्ट इफ यू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन योर चाइल्डहुड तो 90% लोग हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो हम सब्जेक्ट्स लेते हैं, हम कुछ और ही कर रहे होते हैं. ठीक है, और बहुत अच्छे के लिए कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम गलत के लिए कर रहे होते हैं, बिकॉज इट्स लाइक इट्स अ जर्नी. it's a evolution from one step to another step to another step to another step. एंड जैसे जैसे हम लोग करते जाते हैं काम, हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं अपने बारे में भी एंड अपने स्किल्स के बारे में भी, एंड उसके अराउंड हम ट्राई करते हैं, या मैं बच्चों को बोलता हूँ ट्राई करना चाहिए कि अपना प्रोफेशन अपने नेचुरल इंक्लाइन स्किल्स की तरफ अगर आप बनाओगे तो आप मार नहीं खाओगे. अगर हम कुछ फोर्सफुली करने की कोशिश करेंगे तो हम मार खा जाते हैं, स्ट्रगल बढ़ जाता है. नंबर वन. एंड मतलब बीइंग इनटू एजुकेशन फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, मैं ऐसा जैसे मैं ये देखता हूँ कि क्यों जैसे पेरेंट्स को लगता है या यूपीएससी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ मिथ्स हैं जो पेरेंट्स को भी हैं, बच्चों को भी मैंने इस बार काफी मिथ्स क्लियर की थी. दैट ऐसा क्यों है कि यूपीएससी जैसे कि आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, कहीं ना कहीं इंडियन फैमिलीज में क्रेज हमेशा होता है कि बच्चा एक बार यूपीएससी का एग्जाम जरूर दे, या बिकॉज दैट्स नेक्स्ट लेवल अगर क्रैक हो जाए. तो वो यूपीएससी का एग्जाम अगर हम लोग देखते हैं, ये मैं नहीं कहता, रिकॉर्ड्स कहते हैं, रिजल्ट्स कहते हैं, दैट यूपीएससी का एग्जाम मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं, और आप इसको गूगल पे कर सकते हैं, more than 75 to 80% students who crack the UPSC exam in their first, second, third, whatever attempt, they are unfortunately or fortunately from science background. ठीक है, अब we can cry about it, we can not cry about it, but we can't change it. And then lot of people have this myth that humanities लेनी चाहिए अगर यूपीएससी करना है. आई एम सो सॉरी टू पुट दिस में, मैंने ऐसी बकवास बात बहुत बार सुनी है, बट ऐसी बकवास बात का कोई सर पैर नहीं है. Humanities has got, I'll explain you the logic also, and these are lot of myths. ऐसी बहुत सारी myths हैं पेरेंट्स की जो मैं कोशिश करता हूँ कुछ कॉमन आपकी आज आंसर कर दूं. ह्यूमैनिटीज लेने से यूपीएससी क्रैक नहीं होता. मैंने इस पर पूरा रिसर्च किया, फिर मतलब इनफैक्ट आई रिसर्च, मैं पूरा डीप चला गया कि अगर बच्चा जो क्रैक कर रहा है, वो यूपीएससी जो बच्चा क्रैक करता है, वो अगर बीएससी का बैकग्राउंड का बच्चा है, वो डॉक्टर बैकग्राउंड का बच्चा है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज 10th के बाद लेनी चाहिए अगर यूपीएससी क्रैक करना है. तो देन आई फिगर इट आउट कि हुआ क्या, ये लोग बच्चे, जो ये लोग एस्पिरेंट, जो लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, वो जब यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, ये बात आप सब ध्यान सुनना बिकॉज ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में सब लिंक होगा, वो जब वो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उस टाइम पे ह्यूमैनिटीज के किसी एक सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट चूज जरूर करते हैं, बट वो उस टाइम पे जब प्रोवाइडेड दे आर 22 साल, 23 साल, 25, 26, जब भी वो अपना फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट देना शुरू करते हैं, वो 10th के बाद ह्यूमैनिटीज लेना और ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट चूज करना ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन में दोनों जमीन आसमान का फर्क है. आप इमेजिन करो, एक बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, इंजीनियरिंग करता है, अच्छे कॉलेज से करता है, यूपीएससी देता है, दो से सेकंड अटेम्प्ट में जनरली एवरेज में लोग क्रैक करते हैं, क्रैक करता है, सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का लेके क्रैक करता है, और लोगों को मिथ क्या फैल गई हमारे कंट्री में दैट वो बैकग्राउंड उसका ह्यूमैनिटीज था. बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज नहीं था. आप ये मेरे पे ट्रस्ट मत करो, आप गूगल पे थोड़ा सा स्टडी करोगे, आप यूपीएससी टॉपर्स की 10 सालों की लिस्ट निकाल लो, टॉपर की फोटोज आएगी, फोटोज के नीचे रैंक होगा, रैंक के नीचे बैकग्राउंड होगा कि ग्रेजुएशन किसमें की हुई है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा. एंड आई हैपन टू स्पोक टू देम, 20 से 25 मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनमें से काफी लोगों से मैंने कनेक्ट भी किया. ठीक है, सो ये सबसे बड़ा मिथ है. और फिर ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे को एडवांटेज है साइंस लेने का? हालांकि मेरे हिसाब से चारों स्ट्रीम्स बहुत ब्यूटीफुल है, ये स्पेशली यूपीएससी वाली मिथ थोड़ी सी
इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज 11th-12th का साइंस वाला बच्चा बहुत सारा बेचारा, अगर आप भी देखोगे, बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है, उसकी मजबूरी। ठीक है, अभी तक क्या था कि कॉमर्स में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, बट इस साल लास्ट ईयर से कॉमर्स के लिए भी, मतलब अब तो सारी स्ट्रीम्स में सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम आ गया है, जो बच्चा 12th के बाद देगा। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है उसका, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्ट ऑफ देम इन इंडिया have taken are going to take their अपना एंट्रेंस एग्जाम, मतलब अपना मतलब सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जाम। जैसे हम बच्चों को जेई और नीट के लिए तैयार करते हैं, अब हम बच्चों को सीयूईटी के लिए भी तैयार करेंगे। वो सीयूईटी का एग्जाम चाहे बच्चा नॉन मेडिकल ले, चाहे मेडिकल ले, चाहे कॉमर्स ले, चाहे ह्यूमैनिटीज ले, उसको 12th के बाद अराउंड अप्रैल मई के आसपास वो एग्जाम देना ही पड़ेगा, जिसमें जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं 99% ऑफ देम हैव एनरोल्ड, मतलब उन्होंने क्राइटेरिया रख लिया है। जैसे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव अ क्राइटेरिया ऑफ जेई या बिट्स का अपना है। उसी तरीके से जितने भी कॉलेजेस ग्रेजुएशन लेवल के लिए हैं, बीट बीएससी, बीट बी फार्मेसी, बीट बी कॉम, दे हैव clear cut criteria that CUET is mandatory। बोर्ड्स की अनफॉर्चुनेटली, मैंने फिर बोला बच्चों को इस सेशन में आप फिर साथ मत बिठाना, बोर्ड्स की अनफॉर्चुनेटली अब वेटेज बिल्कुल खत्म हो गई है। सिर्फ इतनी है कि यू नीड टू गेट 60% और IIT एडवांस के लिए यू नीड टू हैव 75%। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया अनफॉर्चुनेटली। बट अगेन, अभी हम यहाँ पे आई थिंक वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द मॉरल वैल्यूज ऑफ अ कंट्री, और एंड ऑल्सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज राइट इन अ कंट्री, व्हाट इज रॉन्ग इन अ कंट्री। आई थिंक व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज इस सिस्टम का हम अपने बच्चे के साथ बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। I think and that's fair enough also. We can't change something, so let's don't crib about it. ठीक है, so this is one thing which has changed. So कहीं ना कहीं बच्चे को वो टाइम बिल्कुल चला गया कि हम बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम के प्रेशर से बचा के रखने वाले हैं। जनरली पहले लोग साइंस इसलिए लेते थे बिकॉज बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर लगता था, तो पेरेंट कहते तू अपनी पेस पे पढ़ ले, अपनी पेस पे सीख ले। वो अब हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। I think the better way, I would say this way, is we have to prepare them to handle that pressure, have that mindset to handle that pressure। वो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। एंड बाय द टाइम मतलब दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर देम, तो सीयूईटी, जेई, नीट, एनडीए, आर्किटेक्चर, व्हाटएवर, और क्लैट अगर लॉ करना है, ऑल दीज आर प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम्स विद प्रॉपर प्रेशर। और वही रीजन फाइंड आउट हुआ कि जो बच्चे साइंस ले लेते हैं कहीं ना कहीं, वो आगे जाके सेकंड में आपको एक और बताता हूँ सेकंड मिथ, ये यूपीएससी से भी बिगर मिथ है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद एमबीए के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। ठीक है, आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड इट। एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम, मैं पता है जो ये डिसीजन लेना होता है ना 10th के बाद वाला, ये हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के लेना होता है, शॉर्ट टर्म में गलती होती है। ये मैं आपको बहुत एज तहे दिल एज अ फ्रेंड गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रीम, कॉमर्स इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम, बट उनको लेने की जो रीजंस हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, अब यही से फिर हमने रिसर्च की कि कैट एग्जाम का क्या ट्रेंड है। कैट इज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम, जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के बाद एमबीए के लिए देता है। ठीक है, अब अगर आप उसके टॉपर्स का रिजल्ट निकाल के देखोगे, उसमें भी मैक्सिमम टॉपर्स जो क्रैक करते हैं, दे आर फ्रॉम, अगेन अनफॉर्चुनेटली, फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और इसमें डोमिनेशन है, पूरा पूरा तकड़ा डोमिनेशन है। इनफैक्ट 2017 या 18 में टॉप 10 में से 9 लोग साइंस बैकग्राउंड के थे। So again the similar kind of thing happened. Why it is happening? Because again the kids of 11 12 जो साइंस बैकग्राउंड से जाते हैं, गो थ्रू करते हैं, वो एक टफ माइंडसेट के लिए तैयार होते हैं। इवन इफ जरूरी नहीं है सबका जेई क्रैक होता है, बट फिर भी वो माइंडसेट इतना स्ट्रांग बन जाता है, वो हैंडल करना प्रेशर यंग एज पे आ जाता है, तो वो बड़ी एज तक वो हैंडल बेटर हो जाता है। अगेन आई डोंट से दिस, आप 10 ईयर्स के गूगल पे जाके कैट टॉपर्स के रिजल्ट निकाल लीजिए, यू विल गेट टू नो। ठीक है, science, yes sir, science would mean either medical or non-medical, both are called as a science stream. Science stream means medical, non-medical, non-science stream would mean humanities and commerce. ठीक है, now comes that NDA, बहुत बहुत अच्छा क्रेज अब NDA का बढ़ना शुरू हो गया है। रीजन, पहले सिर्फ बॉयज दे सकते थे, अब गर्ल्स भी दे सकती हैं, विद तो सीट्स बढ़ गई हैं। एनडीए का एकदम से रॉकेट की तरह क्रेज बढ़ गया है। अगेन एनडीए में बहुत सिंपल क्लॉज है, ध्यान सुनना आप सब। आप ध्यान, अगर हम ढंग से डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ेंगे तो हम गलती कर जाएंगे। डॉक्यूमेंट बहुत क्लियरली ये कहता है कि आप एनडी का एग्जाम किसी भी स्ट्रीम से दे सकते हो, बस आपके पास 11 12 में मैथ्स होना चाहिए।
लेकिन उसके नीचे एक स्टार बना हुआ है। वो स्टार सबसे बड़ा गेम चेंजर है कि अगर आपने सिर्फ इंडियन आर्मी में जाना है, तब आप कॉमर्स से भी दे सकते हो, ह्यूमैनिटी से भी जा सकते हो। बट इफ यू वांट टू हैव ऑल द थ्री ऑप्शंस ओपन, व्हिच इज एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, देन यू हैव टू हैव फिजिक्स इन योर 11th-12th। which अब ये चीज इतनी छोटी लिखी हुई है कि बच्चा बेचारा कॉमर्स वाला लेता है कॉमर्स, क्योंकि उसको देखो, अब ध्यान से एक बच्चे की बेचारे की परेशानी, कॉमर्स लेता या ह्यूमैनिटीज लिया उसने, किस सोच से कि मुझे फिजिक्स से नफरत है, मुझे साइंस नहीं करनी। बिल्कुल सही है, अगर आपका इनहेरेंट इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, अगर आप इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आपको करनी भी नहीं चाहिए। बट उसने बेचारे ने क्या गलती की कि उसने कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज इस सोच से लिया, पेरेंट्स ने भी 2-4 जगह बात की कि यार एनडीए करना है। बिल्कुल ठीक, एनडीए किया, कॉमर्स मैथ्स के साथ लिया या ह्यूमैनिटीज मैथ्स के साथ ली, पेपर दिया, रिजल्ट आया, लेकिन वो उसके लिए 1/3 सीट्स रह गई सीधा, बिकॉज 2/3 सीट्स के लिए फिजिक्स कंपल्सरी था। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं मतलब इफ आई हैव टू गो इन डिटेल, ऐसी इतनी मिथ्स हैं कि आई थिंक हम पूरी सैटरडे रात हमें एक दूसरे के साथ स्पेंड करनी पड़ जाएगी आज। ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर का एग्जाम, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट आर्किटेक्चर का एग्जाम सिर्फ साइंस स्ट्रीम से दिया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी स्ट्रीम लें, ठीक है, हम कोई भी स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम में जंप कर सकते हैं 12th के बाद। बट जब अगर हम नॉन मेडिकल, अब नॉन मेडिकल लेने से टॉर्चर बहुत है, 2 साल, ट्रस्ट मी, मेडिकल लेने से भी टॉर्चर है। इनफैक्ट अगर डॉक्टर बनना है तो 7-8 साल 10 साल की जर्नी है। ठीक है, बट in a crude language, in a unbiased manner, I would say that हम किसी भी स्ट्रीम से, मतलब मेडिकल या नॉन मेडिकल के जम मार जाते हैं, वो कंपटीशन आ जाए। अब अगर आप देखो ध्यान से, बैंक पीओ का पेपर है, ठीक है, कितने सारे बैंक पीओ के बच्चे जो बैंक पीओ को पेपर क्रैक करते हैं, वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और वो आराम से क्रैक कर जाते हैं। उनके लिए वो चीज इतनी आसान हो जाती है। रीजन वेरी सिंपल, बिकॉज वो 11th-12th में 9th-10th में से वो माइंडसेट से पढ़ते आ रहे हैं। वो अगर जेई नहीं भी क्रैक कर पाते, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इंजीनियरिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, वो एक पर्सनल डिसीजन है। आई एम इन फेवर ऑफ चूजिंग द स्ट्रीम, या तो बिल्कुल क्लैरिटी हो कि मुझे सीए बनना है, एब्सोल्यूट, या मुझे साइकोलॉजी करनी है। अब जैसे अगर मुझे साइकोलॉजी करनी है तो वो उसके 2 रास्ते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड नॉर्मल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के लिए मुझे मेडिकल लेना है, नॉर्मल साइकोलॉजी में अगर मुझे ऑनर्स करनी है तो मैं ह्यूमैनिटीज से भी कर सकता हूँ। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब आई हैव गॉट द परमिशन टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। Normal psychology, I am working as a psychologist. I am working as a counselor basically. I can't prescribe medicines, but I am still following a passion. It's going to be an upcoming thing. So अगर मेरा reason of choosing the stream स्टेज पे clear cut नहीं भी है, then I should go, मतलब मैं बच्चों को भी एडवाइस करता हूँ, स्ट्रीम सारी इक्वल है। मैं आपको मतलब आप लोगों ने एक चार्ट देखा, मैंने बच्चों को एक प्रॉपर, वी गेव देम अ 3-page डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने देखा कि बच्चों ने उड़ा दिया एरोप्लेन में? वो बहुत वेल, आप प्लीज उसको देखो। बच्चों को जिस दिन 26 जनवरी को सेशन हुआ था, मैं ग्रुप से भी भिजवा दूंगा आप लोगों के लिए। 26 जनवरी के सेशन में मैंने सबको 2 ट्रैकर्स दिए थे, एक वो वाला जो पहले दिखाया, और एक रा का डॉक्यूमेंट, रा बाय जेनेसिस का दिखाया, जिसमें हमने क्लियर कट डिटेल्ड फॉर्म में जितना पॉसिबल है हमने उसमें आपको सारी करियर ऑप्शन दिखाई हैं। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन चूजिंग द राइट, आई नेवर से स्ट्रीम, राइट सब्जेक्ट्स। ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल जाए कि बच्चे के ऑप्शंस बहुत सारी खुल जाएं। मतलब इस रीजन से हमें आसान स्ट्रीम नहीं चूज करनी कि उसमें आई वुड से आसान है। आई थिंक मैं बच्चों को ये गाइड करता हूँ कि चूज टफ, बिकॉज मतलब समथिंग विच इज राइट फॉर यू, नॉट व्हाट इज इजी फॉर यू। इस स्टेज पे 2 साल, मतलब मुझे मतलब ये चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, हमें बच्चे को कंपटीशन से बचाना क्यों है? बिकॉज कंपटीशन का तो खुद से कंपटीशन है, और आज बचा लेंगे तो 3 साल बाद फेस करेगा, 3 साल बाद, तो 6 साल बाद फेस करेगा। फॉरेन जाने के लिए भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एसएटी का एग्जाम देगा, कंपटीशन तो है ही है। जितनी जल्दी फेस करेगा उतना जल्दी मेंटली स्ट्रांग होगा, उतनी जल्दी क्रैक, फेलियर सीखेगा उतनी जल्दी क्रैक करेगा। जितनी जल्दी हम फेल होना सिखाएंगे बच्चे को, उतना जल्दी वो क्रैक करेगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई माइट बी एब्सोल्युटली रॉन्ग आल्सो। You see, I am sharing it from my own experience. Your experience of life would be absolutely different, and I'm open for learning from all of you. But Provid, आज मतलब वो मौका नहीं है जब मैं आपसे सीख सकता हूँ। But this is my intake about choosing this stream. ठीक है, अब अगर मतलब मैं आपको चार्ट पे, मेरी टीम आपको 2 स्लॉट्स दे देंगे
जिसमें मैं कल अवेलेबल हूँ, एंड आप ऐसी 3-4 विंडोज हम आपको देंगे अगले 7 दिन में, व्हेन आई विल बी फुली अवेलेबल in both the branches, and in fact I'll go to Zirikpur branch also, and I'll meet the parents there also, where you can book your slot and come and meet me personally for all these kind of discussions. Okay, now coming to the state quota system, this is important and this is very important. I want you to सब कुछ छोड़ के ये वाली पार्ट सुन लीजिए, एंड चॉइस ऑफ स्कूल, ये दो चीजें में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट कोटा सिस्टम ये कहता है, पहले मैं आपको कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का समझा देता हूँ। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज जिस भी हमारे बच्चे ने लेना है, उसका स्टेट कोटा सिस्टम ये कहता है कि कुछ भी हो जाए, आपका बच्चा यानी कि मेरा बच्चा 11th-12th डेफिनेटली और डेफिनेटली यूटी से ही करेगा। यूटी मींस चंडीगढ़ से करेगा। मतलब अगर वो 9th-10th पंचकुला के किसी भी स्कूल से कर रहा है, तो अब हमें वक्त आ गया है 11th-12th में उसके लिए एक प्रॉपर अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए। मैंने बोला कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए वी नीड गुड स्कूल। When I say good school, means a school which gives them an absolute exposure of overall development. Because commerce humanities में डमी एडमिशन का बिल्कुल भी मत सोचना आप, बिल्कुल बच्चा क्या बोलते हैं निखित हो जाएगा। प्रॉपर स्कूल, मतलब a school like probably अगर सेंट कबीर भवन विद्यालय, जो भी नामी स्कूल्स हैं, ठीक है, मे बी सेक्रेड हार्ट फॉर गर्ल्स। इफ आई रिपीट, इफ योर चाइल्ड इज प्लानिंग टू टेक कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, बिकॉज देयर इज 85% स्टेट कोटा, मतलब रीजन बताना, यूटी कोटा, सॉरी, मैंने ऐसे 85% यूटी कोटा, इसका ये मतलब है कि जब 12th के बाद बच्चा कॉलेज के लिए एडमिशन लेगा, तो उसमें 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में 11th-12th यूटी से किया है, यानी कि चंडीगढ़ से किया है। क्लियर? फटाफट से करेंगे, बिकॉज नहीं तो फिर आज डिनर भी साथ करना पड़ेगा। नंबर 2, कमिंग टू नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल इज वेरी सिंपल, लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नॉन मेडिकल इज वेरी सिंपल। अगर हमारे पास, आप हरियाणा में, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, अगर आप हरियाणा में लास्ट 10 सालों से रह रहे हो, तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल बन जाएगा। उस केस में बच्चा 11th-12th करेगा चंडीगढ़ से, क्योंकि चंडीगढ़ में हमारे पास पैक है नंबर 1, विच इज द टॉप कॉलेज ऑफ दैट रीजन, जिसमें 85% सीट्स, आई रिपीट 85% सीट्स इन पैक, विच इज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग, आर क्लियरली रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स जिनकी 11th-12th यूटी से होगी, अगेन चंडीगढ़, विच मीन्स सिमिलरली, ध्यान सुनेंगे सारे, सिमिलरली चंडीगढ़ में एक और कॉलेज है विच इज पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर बीटेक का नाम है यूआईईटी, जिनका अलग कॉलेज है 25 में, उसके अंदर देयर इज नो कोटा। तो कई लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि यूटी का कोटा वहां भी वैलिड है। नो, पंजाब यूनिवर्सिटी हैज नो, एब्सोल्युटली नो कोटा। ठीक है, बट वो एक ओपन राउंड पे काउंसलिंग होती है। थर्ड इज अनदर कॉलेज इन चंडीगढ़ विच इज सीसीईटी 26 सेक्टर, again 85% seats in that government, I'm talking about the government colleges right now, again 85% seats have been reserved for students जो 11th-12th कहां से करेंगे, आप सब बोलेंगे मन में, वेरी गुड, चंडीगढ़ से करेंगे। क्लियर है? अब अगर आपको डोमिसाइल का फायदा उठाना है, इसके साथ ही अगर आप हरियाणा में 10 साल हो गया आपको मिनिमम, तो आपको हरियाणा का एक डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जो हरियाणा के अच्छे कॉलेजेस हैं, ध्यान सुनेंगे, 11th-12th अगर बच्चा चंडीगढ़ से भी कर रहा है, बट आपके पास डोमिसाइल अगर हरियाणा का भी है, तो उसको उस डोमिसाइल के बेसिस पे हरियाणा के एक स्टेट कोटा मिल जाएगा। बट अगर आप पंजाब में रहते हैं, तो आपको सिर्फ, हालांकि पंजाब में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे नहीं है, बट फिर भी अगर आप पंजाब में रहते हैं और आपको 3 साल रहते हुए हैं, हरियाणा में 10 साल, पंजाब में सिर्फ 3 साल, 3 साल से भी अगर 3 साल आपको बेर मिनिमम हो गए हैं, तो आपको पंजाब का डोमिसाइल का कोटा मिल जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो आप चैट पे भेज सकते हैं। ओके, एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ, जो मेडिकल का कोटा समझना है, मैं आपको समझाता हूँ फटाफट से। मेडिकल का कोटा बहुत क्लियर है, थोड़ा सा डिफरेंट है नॉन मेडिकल से। रूल कहता है, ध्यान सुनेंगे, सबसे टफ है जो भी मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, अगर चारों एक जगह से हैं, एक जगह मींस आइदर हरियाणा और यूटी चंडीगढ़, तो ही स्टेट कोटा मिलेगा और यूटी कोटा मिलेगा। मतलब इन पंजाबी भाषा, अगर मेरा बच्चा मेडिकल ले रहा है और 9th-10th उसने पंचकुला, दिस इज ट्रिकी नो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। अगर मेरा बच्चा, समझने के लिए, अगर मेरा बच्चा 9th-10th पंचकुला से कर रहा है, हरियाणा से कर रहा है, और अगर वो 11th-12th चंडीगढ़ स्विच करता है, तो उसको GMCH 32 में कोटा नहीं मिल सकता।
मेक सेंस? मेक सेंस? उसको हरियाणा अब, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी उसको ध्यान सुनेंगे, फिर भी उसको 11-12 चंडीगढ़ से करने का फायदा है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाई। उस केस में क्या हुआ, अब उसको 9-10 के बेसिस पे 11-12 में तो यूटी कोटा नहीं मिलना, लेकिन अगर आप हरियाणा को डोमिसाइल रखते हो तो उसको हरियाणा का कोटा तो मिल ही जाएगा 2 साल बाद हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। चंडीगढ़ से स्कूलिंग करने का बेनिफिट क्या होगा कि अगर वर्स्ट केस में नीट नहीं भी क्रैक होता तो जितने भी चंडीगढ़ के ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, बीएससी के लिए, बी फार्मेसी के लिए, कॉलेजेस लाइक एमसीएम, डीएवी कॉलेज, एसडी कॉलेज, उसमें अगेन देयर इज 85% कोटा, जैसे कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के लिए था, वो उसको मेडिकल के लिए, बीएससी के लिए मिल जाएगा। इस सेशन के पैसे लगेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि तो यू वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अगर ध्यान सुनेंगे, अगर ये मैं मतलब आज ये चीज मैंने फाइनल फिगर आउट की जो मैं अब बताने जा रहा हूं, बहुत स्मार्टली अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है और आप 11-12 पंजाब से करा देते हो, वो एडमिशन वगैरह हम करवा के देंगे डमी अगर जरूरत होगी, अगर हम 11-12 पंजाब से करवा देंगे उसकी, मेडिकल की बात कर रहा हूं ये वाली, तो उसको दोनों स्टेट्स का कोटा मिल जाएगा। क्योंकि पंजाब में रूल 9-10 वाला था, उन्होंने स्क्रैप ऑफ कर दिया, लास्ट ईयर से रूल वापस आ गया, 11-12 होनी चाहिए पंजाब के स्कूल से, या फिर 3 साल से आप पंजाब में रह रहे हो तो आपको मेडिकल कॉलेज के लिए पंजाब में कोटा मिल जाएगा। तो उस केस में डोमिसाइल के बेसिस पे हरियाणा का मिल जाएगा और स्कूलिंग के बेसिस पे पंजाब का मिल जाएगा, तो बहुत भयंकर ऑप्शंस खुल जाएंगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज की काफी सीट्स मेडिकल की बढ़ चुकी हैं, हरियाणा में भी काफी बढ़ गई है। ये सिनेरियो है स्टेट कोटा सिस्टम का, इससे विरुद्ध आप प्लीज मत जाना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। ठीक है, लास्टली बिफोर क्लोजिंग ऑन द डिस्कशन, चॉइस ऑफ स्कूल, मैंने बोला कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए प्लीज टेक अ प्रॉपर स्कूल, जहां पे बच्चा रोज सुबह उठ के प्रॉपर टाई टू लगा के स्मार्ट कंघी करके सुबह घर से निकले, शाम को आए, बिकॉज कोचिंग का इतना प्रेशर नहीं होगा। अगर बच्चा साइंस ले रहा है, अब ये मेरे से आप देखो मैं हाथ जोड़ने वाला हूं, ठीक है, अगर बच्चा साइंस ले रहा है, ये मेरे हाथ जोड़ के प्लीज, ठीक है, प्लीज उसको गवर्नमेंट स्कूल मत भेजना। ठीक है, अब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है, एंड इसमें कुछ छुपा नहीं है, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू। वी नीड अ चाइल्ड, इरिस्पेक्टिव लोग क्या बोलते हैं, अ चाइल्ड मस्ट इन्वेस्ट 3.5 hours एवरी डे, अगर उसने सिर्फ 11-12 में नॉन मेडिकल करना है, करना मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं देना, बट साइंस करनी है, साइंस स्ट्रीम करनी है, तो भी रोज 3-3.5 घंटे चाहिए। एंड अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है विच इज जेई और नीट, तो एटलीस्ट 5 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए। ठीक है, एंड दिस नीड्स रेगुलर 2 साल, ऐसा नहीं है कि हम मतलब बहुत लोग बोलते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी, जो बच्चे क्रैक करते हैं आप उनसे पूछना, डिफिकल्ट नहीं है, वास्ट है। ज्यादा नहीं पढ़ना, रोज पढ़ना है, बहुत फर्क है। मैराथन है, रेगुलर भागना है, ब्रेक नहीं लेना, 6 दिन मतलब वीक में 6 days नॉर्मल स्टडी करनी है, बट वो नॉर्मल स्टडी करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम चाहिए। अगर मेरा कोई भी बच्चा, और ये बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, वो जब सुबह स्कूल जा रहे हैं 2, 2:30, 3 बजे 2 बजे तक, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली, पहले देखो गवर्नमेंट स्कूल में सबसे लुक्रेटिव लगता है बिकॉज हमारे पैसे बहुत बच जाते हैं 2 सालों में। ठीक है, बट वो 2 साल बाद इतना पैसा प्राइवेट सीट में निकल जाता है कि वो जो हमने 1 लाख बचाया 2 सालों का, वो सारा निकल गया। कैसे? अब अगर मेरा बच्चा 2-2:30 बजे स्कूल से आ रहा है, 4 बजे जेनेसिस आ रहा है शाम वाले बैच में, 7, 7:30, 8 बजे छुट्टी हो रही है, तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है सेल्फ स्टडी का, आप समझो। ठीक है, उसमें फिर क्या होगा कि हम एक ब्लेम गेम चलती रहती है, ब्लेम गेम ब्लेम गेम गेम। अभी वाला सिनेरियो आप देखो जैसे 10th में होता है बच्चों के साथ। अगर कितनी बार पेरेंट्स ने हमें कंप्लेन किया कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, बच्चे के पास टाइम ही नहीं मिलता, 10th में भी समझ आता है, अब 11-12 में समझो क्या होगा अगर सेम रूटीन फॉलो होगा, बिना से अभी 10th का इतना सिलेबस है सिर्फ, चाहे सीबीएसई चाहे आईसीएसई, इतना सिलेबस है, 11-12 इससे आप सीधा 10x कर लो। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा तो वो काम नहीं कर पाएगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा, वो फिर जस्ट फॉर एग्जिस्टेंस है। फिर बच्चा बेचारा ये बोलता है, पेरेंट भी बोलता है कि मेडिकल नॉन मेडिकल डिफिकल्ट है, गलती कर ली, तेरे को ह्यूमैनिटीज करा दो, स्ट्रीम सारी बहुत अच्छी है, हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ गलत हो जाता है। सो नाउ गवर्नमेंट स्कूल आई वुड, मतलब मेरे को अगर आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में कोई टीचर के साथ थोड़ी बहुत सेटिंग है आपके पर्सनल लेवल पे,
और वो आपको इंश्योर करता है कि अटेंडेंस का पंगा नहीं है, तो आप आंख बंद करके फिर आप गवर्नमेंट में करवा लीजिए ना। ठीक है, नेक्स्ट तो गवर्नमेंट इज आउट ऑफ पिक्चर अगर मुझे बच्चे को सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाना है। ठीक है, नाउ कम्स वेदर प्राइवेट और डमी। डमी पर्सनली मैं बहुत फेवर में हूँ। आई एम लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स नॉन अटेंडिंग स्कूल्स इन 11-12 फॉर साइंस स्टूडेंट्स, बिकॉज बच्चा सुबह क्लासेस लगाता है 4-5 घंटे हमारे पास, जैसे जितने हमारे जो बैचेस हैं वो दोनों तरफ चलते हैं, बट जो हमारा सुबह वाला बैच है 9 to 2 वाला बैच है, उसमें बच्चा क्लासेस लगाता है। अगर बच्चा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन जो कंट्रोल रख सके, तो उसके पास इतना टाइम है पढ़ने के लिए, बट प्रोवाइडेड वो फोकस हो। वो 9 to 2 क्लास लगाता है, वो 2-2:30 बजे फ्री होके पूरा दिन फ्री है सेल्फ स्टडी करने के लिए, अपनी कोई हॉबी को भी परस्यू करने के लिए। ये उन बच्चों के लिए जिनका फोकस, आई रिपीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, अगर बच्चा, आप चाहते हो कि स्कूल का रूटीन बने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट नहीं है, साइंस लेना है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन शेप अप हो रही है अब लास्ट 2 सालों से। आई रिपीट, अगर बच्चे ने साइंस स्ट्रीम लेनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम शायद टारगेट नहीं है, लेकिन साइंस स्ट्रीम से बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उस केस में हम उसको किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे जहां पे 12-12:30 छुट्टी हो जाए। Now in that situation what will happen, a child is going, आपका जो एक क्यूरियोसिटी या पेरेंट्स को कंसर्न होता है कि बच्चा स्कूल जाए, वो शांत हो गया, बच्चा रोज सुबह उठ के स्कूल जा रहा है, 12-12:30 छुट्टी हो रही है, तो 1-1:15 तक घर आ जाएगा। 4 बजे जेनेसिस आना है तो उसके पास 3 घंटे की विंडो वहां भी है काम करने के लिए, और इतना हेक्टिक रूटीन नहीं है एज कम्पेयर टू वो जो 2:30-3 बजे बेचारा बसों पे लटकता आ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स की बसेस भी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की बस एक्सेप्ट 16 मॉडल किसी की बस नहीं है। 16 मॉडल तक पहुंच के वापस आना, इट्स अ टास्क। So let's give them a platform where they can study, but obviously बिना वॉच रखे कुछ होगा नहीं, and what do we say, बिना इंस्पायर्ड एक्शन, कॉन्टिन्यूस एक्शन से कुछ नहीं होगा। इट्स अ मैराथन। 11th-12th इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैराथन, जिसमें अगर बच्चा कंसिस्टेंटली भाग जाएगा तो काम हो जाएगा। अगर बीच में 1-2 महीना बच्चा, जैसे बच्चे बेचारे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, 2-2 महीने बेचारे अपने ऑफ ट्रैक हो जाते हैं एंड ऑल, वो अनफॉर्चुनेटली, देखो इसमें ऐसा है कि हम कुछ कर नहीं सकते। 11th-12th में अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कराना है तो मुझे फोकस्ड एफर्ट चाहिए, और फोकस एफर्ट तभी आएगा अगर बच्चे के पास टाइम होगा, बैलेंस वाला टाइम, मतलब उसको अपने लिए भी 1-1.5 घंटा शाम को मिल रहा है काम करने के लिए, मे बी सम हॉबी, मे बी सम जिम, उसमें फिर सारा टाइम निकल जाता है। ठीक है, रही बात एडमिशंस की, फॉर ऑल वेदर अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग फॉर साइंस स्ट्रीम आई एम सेइंग, ठीक है, वी वुड हेल्प यू अबाउट दैट इफ यू वुड नीड। वी गेट 2 दिन स्कूल से हम लोगों को टोटल 50 to 60 सीट्स मिलती हैं स्कूल में। ठीक है, जहाँ से हम लोग अपने स्टूडेंट्स की एडमिशंस करवा देते हैं। वो आपको हम डिटेल भेज देंगे, जिसको, बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग, वी हैव ऑलरेडी क्लोज 22-23 सीट्स ऑलरेडी विद आवर ओन स्टूडेंट्स फॉर 10th मूविंग 11th, अपने बच्चों की, और कुछ आउटसाइडर्स की भी। उसके बाद अगर वो 60 का नंबर जब टच हो जाएगा, देन हम आपकी स्कूल एडमिशन में हेल्प नहीं करा पाएंगे। बाकी ऑब्वियसली वी आर देयर टू मेंटर देम फॉर नेक्स्ट 2 years आल्सो। ठीक है, बट अगर आपको हमारे थ्रू स्कूल एडमिशन चाहिए, वो उसमें थोड़ा सा फीस का भी कंसेशन मिल जाता है स्कूल्स को हमारे थ्रू, तो उस केस में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। वो आपको मेरी टीम, दे विल गेट बैक टू यू अबाउट दैट। रेस्ट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, देयर आर 2 टाइम स्लॉट इफ यू सी, अगर आप चैट चेक करेंगे ग्रुप पे, फॉर टुमारो I would be in sector 15 branch in the morning from 11 AM to 12:30, in sector 20 branch from 2:30 to 4 in the afternoon। ऐसी ये एक विंडो है, ऐसी और विंडोज भी मिलेंगे आपको अपकमिंग वीक में। जरकपुर के पेरेंट्स को मैं, अगर आप कल आना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, आप इस विंडो में कल आ सकते हैं, एल्स आई विल स्पेशली कम टू जरकपुर एंड आई विल मीट ऑल ऑफ यू इन दैट केस। अब अगर आपके किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप कल आ जाइए, और अगर कल अवेलेबल नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने अपने पूरे ईयर में से ये वाला 1 हफ्ता में 10 दिन सिर्फ इसी चीज के लिए रखता हूँ। सो यू विल गेट टाइम स्लॉट्स रेगुलरली। अगर आपको कोई भी कंसर्न हो हमारे एंड से, कुछ भी आपको लगता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं, या आपने डांटना है मुझे आके, आपको मैं टाइम दूंगा, आप उस टाइम पे आके हमें डांट सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स, तो आई वुड लव टू मीट यू। रेस्ट, we started the discussion that next 45 days are absolutely crucial। नहीं मैम, आप बच्चे को भी साथ लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, किड्स आर मोर देन वेलकम। बट कल आई थिंक बच्चों का जेनेसिस में सारा दिन कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड है बच्चे,
बट आप देख लेना, कोई इशू नहीं है. तो लेट्स नॉट पुश अप द पैनिक बटन. वी आर विद यू एज ऑलवेज. पूरी कोशिश करेंगे. अगर आपको लगता है कोई चीज हमें और इम्प्रूव करनी चाहिए, यू हैव कि हम और बेटर करें बच्चों के लिए, वी आर ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट एंड ग्रो टुगेदर. ठीक है, वी वर्क ऑन अ स्ट्रैटेजी दैट कि हम परफेक्ट नहीं है, बट हम एक दूसरे के साथ चलेंगे तो बच्चों को परफेक्ट बना देंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई होप आई हैव able to add some value to all of you, and bye bye, take care and see you soon. Bye bye. Please share that too. Okay, I'll share the trackers in the groups, ma'am. I'll share the trackers. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मेरा गूगल पे नंबर पे आप 100 रुपए जमा करा. Okay, jokes apart, thank you so much. Have a very good day. Thank you so much for your time. Thank you so much.